আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমরা আগের দিন যেটা করছিলাম সেইটা আমরা ভিলানের কনসেপ্টটায় আমরা এসেছিলাম। তো ভিলান আমরা আগের দিন লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম যে হোয়াট ইজ ভিলান। বেসিক্যালি ভার্চুয়াল ল্যান, আমি আরেকবার ছোট্ট করে রিপিট করে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ল্যান আমরা বলে থাকি। কেন ভার্চুয়াল ল্যান বলে থাকি? ল্যানেতে আমাদের কি হয়? বেসিক্যালি ল্যানেতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা একটা সুইচ আছে, প্রত্যেকটা পিসি দে আর কানেক্টেড টু ইচ আদার, মানে থ্রু দ্য সুইচ। সাপোজ কোনো একটা সুইচ যদি কোনো একটা ফ্রেমকে রিলিজ করে, ডেটাকে রিলিজ করে, ইনিশিয়ালি at the first time that will be broadcasted, and after that that will be unicasted. তার মানে কি হয়? যখন আমি তোমাদের কাউকে চিনি না তখন আমি তোমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবো। যখন আমি চিনে যাচ্ছি যে কে রোহিত, কে বিভু, কে মনীষ, তখন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি বলছি যে বিভু তুমি এটা বুঝতে পেরেছো, মনীষ তুমি তুমকো ইয়ে समझ में आया, রোহিত তুমি কি এটা বুঝেছো, তখন আমি ইউজ করছি নাম ধরে। সুইচ যখন কাজ করে ঠিক একইভাবে কাজ করে। কিভাবে কাজ করে না, প্রথমে ব্রডকাস্ট মোডে যখন সুইচটা চালু হয় তখন তার যে ম্যাক টেবিলটা থাকে সেটা ফাঁকা থাকে, পুরো ফ্রি থাকে। ম্যাক টেবিলটা ফাঁকা থাকলে কি হচ্ছে, যতক্ষণ না কেউ কমিউনিকেট করছে। অনেকের একটা কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। हर एक माने मैक्सिमम का ये गलतफहमी है कि समझ लो कि एक स्विच है 24 पोर्ट का, उसमें 24 पीसी इज कनेक्टेड, बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, दे आर ऑन। मतलब सब में तुम बैठ के सब यूजर बैठ के কাম কর रहा है, প্রত্যেকে কাজ করছে, বাট কেউ কারোর সঙ্গে কিন্তু কথা বলছে না। দেন অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দি এন্টায়ার ম্যাক টেবল ইজ ব্ল্যাঙ্ক, এন্টায়ার ম্যাক টেবল ইজ ব্ল্যাঙ্ক, মানে ম্যাক টেবলে কিছু এন্ট্রি থাকে না। যখন ধরে নাও মনীষ বিভুকে কোনো ডেটা পাঠাচ্ছে, তখন ম্যাক টেবিলে গিয়ে এন্ট্রিটা হয়। তখন কি হয়, প্রথম যখন ম্যাক টেবিলটা তৈরি হয়, মানে সুইচের যেমন আমরা রাউটিং টেবিল দেখেছি, তেমনি সুইচে হয় ম্যাক টেবিল। ম্যাক টেবিলও বলে, আবার অনেক সময় তুমি দেখবে তোমাকে ওই বলে, কি বলে, আমরা ম্যাক টেবিল পাবো বা ক্যাম টেবিল, সেটা আমরা পরের চ্যাপ্টারে আছে, সেটা আমরা আসবো পরে। তো ইনিশিয়ালি দ্যাট ওয়াজ ব্ল্যাঙ্ক, দ্যাট ইজ ব্ল্যাঙ্ক, বাট যখন একটা স্টার্ট করছে কমিউনিকেট করতে ওয়ান পিসি, তখন কি হচ্ছে, এই এন্ট্রিটা হচ্ছে। তার মানে প্রথম যখন একটা সুইচ কাজ করে তখন সে ব্রডকাস্ট মোডে করে। আফটার দ্যাট যখন তার ম্যাক টেবিল জেনারেট করে যায় বা ক্যাম টেবিলটা জেনারেট করে যায়, তখন সে চিনে যাচ্ছে কে কি, তখন সে ইউনিকাস্ট মোডে কমিউনিকেট করে উইথ ইচ আদার। এবার ধরা যাক কোনো একটা পিসি, সাপোজ ওয়ান পিসি সেন্স এ ब्रॉडकास्ट, सो ऑटोमेटिकली दैट ब्रॉडकास्ट विल फ्लो, तुम्हारे पास जितना भी पीसी है सबके पास जाएगा। समझ लो तुम्हारे पास एक 24 पोर्ट पीसी है, मतलब 24 पोर्ट पीसी के अंदर 8 पोर्ट एक 8 पोर्ट में 8 पीसी कनेक्टेड है, दैट इज फॉर सेल्स ग्रुप। देन द नेक्स्ट 8 ग्रुप पे कनेक्टेड है, समझ लो कि तुम्हारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट जो 8 ग्रुप है उसमें समझ लो प्रोडक्शन। तो सपोज प्रोडक्शन का कोई पीसी अगर किसी भी तरह उसका जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई ब्रॉडकास्ट भेजे, मतलब एक प्रोडक्शन का पीसी ब्रॉडकास्ट भेज दिया, that will be circulated to rest of the 23 ports, you cannot restrict it। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसमें नहीं जाना चाहिए वो ब्रॉडकास्ट वहां पर चला जा रहा है, मतलब কনজেশন অ্যারাইজ हो रहा है, ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন ज्यादा हो रहा है। মানে কি হচ্ছে, আমার ধরো এমনি একটা 24 পোর্টের সুইচ আছে, আমি বলেছি ভাই প্রথম 8টা যে পোর্ট আছে, এই 8টা পোর্ট আমার সেলস ডিপার্টমেন্টের পিসি কানেক্টেড, পরের যে 8টা পোর্ট আছে সেই 8টা পোর্ট আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট কানেক্টেড আছে, আর লাস্টের যে 8টা পোর্ট আছে ওই 8টা পোর্টে আমার ভাই প্রোডাকশনের কাজকর্ম ওখানে ওই 8টা পিসিতে হয়। এটা আমি বলে দিচ্ছি, মানে লজিক্যালি বলা আছে। তার ফলে কি হচ্ছে, ধরো প্রোডাকশনের কোনো একটা পিসি কোনো একটা কাজ হচ্ছে, সেখানে প্রোডাকশনের একটা ব্রডকাস্ট দিয়েছে, তো সেই ব্রডকাস্টে তো প্রোডাকশনের মধ্যেই থাকা উচিত, তার কারণ ওটা প্রোডাকশনের জন্য, সেটা আননেসেসারি সেলস বা অ্যাকাউন্টসে আসা উচিত না।
আবার সেলসের মধ্যে যদি কোনো একটা ব্রডকাস্ট দেয় তাহলে সেটা আননেসেসারিলি অ্যাকাউন্টস বা প্রোডাকশনে যাওয়া উচিত না। আবার অ্যাকাউন্টস যদি কোনো একটা ব্রডকাস্ট দেয় সেটা লজিক্যালি আমার সেলস বা প্রোডাকশনে আসা উচিত নয়, কিন্তু এখানে আসবে। কেন আসবে? বিকজ দে আর কানেক্টেড টু এ ল্যান, নর্মাল সুইচ। সো আননেসেসারি ব্রডকাস্ট ট্রাভেল করবে, তার ফলে লাইন কনজেশন বাড়বে, তার ফলে ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন বেড়ে যাবে। তাহলে ভিল্যানটা আমি করব কেন? না, ভিল্যানটা আমি করব একটাই কারণে, যাতে আমি তার ব্রডকাস্টটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারি। তার মানে ব্রডকাস্ট মানে হুইচ উইল বি ফ্লাডেড টু অল অবভিয়াসলি, বাট রেস্ট্রিক্টেড। যেখানে যেখানে ফ্লাড করা উচিত সেখানেই फ्लड করবে, बाकीদের না। जहां पर जिस जिस पोर्ट में तुम्हारा फ्लडिंग होना चाहिए उसमें जाओ, बाकी में मत जाओ। मतलब फ्लडिंग हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या हो रहा है? दो चीज, बैंडविड्थ कंजम्पशन रेगुलेट हो रहा है और कंजेशन भी एडजस्टेड हो रहा है, कंजेशन कंट्रोल हो रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट्स। कैसे हो रहा है, मैं एक वीडियो, ये तुमको नेट में भी मिल जाएगा, फिर भी हमने एक वीडियो दिखा रहा है। देखो, ये एक स्विच है, एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्विच, इसमें 1 2 3 4 5 पीसी कनेक्टेड है। तो स्विच इनिशियली जब कोई भी विलन नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? देखो, ये स्विच पैकेट भेज रहा है इनिशियली, देखो चला गया, उसके पास जानकारी है कि भाई कौन सा पीसी में जाना चाहिए मेरा डेटा, मैक टेबल फॉलो करके चला गया। ये यूनिकास्ट मैसेज हो गया। जब विलन होगा, देखो वन मोमेंट, जब विलन होगा ना, इसके मतलब ग्रुपिंग हो गया। इसका ब्रॉडकास्ट ये तीनों तीनों में ही रहेगा, इसका ब्रॉडकास्ट इन तीनों में रहेगा, इसका ब्रॉडकास्ट इन तीनों में, तीनों के अंदर ही रहेगा। कैसे, देख लो। हाँ, देखो अगर दूसरा विलन में जाना चाहिए, ये एक विलन है, दूसरा ये, तीसरा ये, अगर एक विलन से दूसरा विलन का हो ही सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन के साथ बात करना, तब जाके वहां पर डायरेक्टली एक विलन के साथ बात नहीं कर सकते। कैसे करेगा? वहां पर राउटर होना चाहिए। इसको कहता है इंटर विलन राउटिंग। मतलब राउटिंग हो रहा है इंटर विलन के हिसाब से, तो इसीलिए चला जा रहा है। नाउ यू मे आस्क मी द क्वेश्चन कि सर यहाँ पर तो রাউটার কে কি জরুরত है, কেন এখানে রাউটার চাই? আমার রাউটার না দিলেও তো কেন একটা ভিলেন যেতে পারবে না? বিকজ দ্য প্রাইমারি এন্ড দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন बिफोर डिजाइनिंग द विलन इज, तुम्हारा हर एक विलन का नेटवर्क आईडी डिफरेंट होना चाहिए। मतलब समझ लो कि विलन, इस विलन जो है, पहला जो नील ब्लू कलर का विलन है, ब्लू विलन का आईपी होगा मतलब आईडी होगा 192.168.1.0/24। तो दूसरा का होना चाहिए कोई भी, ये आईडी छोड़ के कोई भी, 172 भी हो सकता है, 192.168.2.0 नेटवर्क भी हो सकता है, तीसरा का 10.0 भी हो सकता है। लेकिन द ফার্স্ট কন্ডিশন ইজ, ভিলেন যখন তুমি ক্রিয়েট করবে তখন কিন্তু সেম ক্লাসের আইপি দিলে চলবে না। সো যেহেতু ভিলেনের দুখানা আইডি আলাদা ডিফার করছে, নেট আইডি ডিফার করবে, সো ইউ রিকোয়ার দ্য রাউটার। सो सो इट इज कॉल्ड इंटर विलन राउटिंग। मतलब एक विलन के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहे तो थ्रू राउटर करना पड़ेगा। तो इसको कहता है इंटर विलन राउटिंग, जो यहाँ पर दिख रहा है। देखो, ये हो गया इंटर विलन राउटिंग। दिस इज द इंटर विलन राउटिंग। ये हम बाद में आएंगे। ये विलन का एक सुविधा है कि यहाँ पर कोई पोर्ट इस विलन के अंदर तुम डाल सकते हो। ये देख, दिस इज अनदर
तुम्हारा ये एडवांटेज कि यहाँ पर ब्लू विलन है, यहाँ पर भी होगा, तो ये ब्लू विलन इसके साथ जाके इसके साथ ही बात करेंगे, ये जाके इसके साथ जाके यहाँ पर बात करेंगे। देखो ये अलग कलर है, जब भी कोई ट्रैफिक जा रहा है इस पर्टिकुलर विलन का पर्टिकुलर विलन में चला जा रहा है। मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एक ही स्विच में एक विलन ही रहेगा, ये विलन डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। जैसे कि देखो ब्लू विलन यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। ये जो पिंक विलन है वो भी दो दो जगह है, ये जो ग्रीन विलन है दो जगह है। मतलब ये हो सकता है किसी का ट्रैफिक किसी के साथ नहीं जुड़ जाएगा। दिस इज द वन टाइप। जो मैंने पहले जो बोल रहा हूं इसको देखो, अगर हमने विलन नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक वीडियो दिखा देंगे तो ये ये देखो, नॉर्मल जब कोई भी विलन क्रिएट नहीं है तो एक एक स्विच है, उसके साथ रेड पीसी है, ग्रीन पीसी है, ब्लू पीसी है। मतलब तीन विलन, तीन ये मिक्स एक डिजाइन है, ये सब एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। रेड पीसी है अकाउंटिंग का, ब्लू पीसी है शिपिंग शिपिंग का, और ग्रीन पीसी है सपोर्ट का। तो कोई विलन नहीं है, नॉर्मल लैन में कनेक्टेड है, तो क्या होगा देखो। देखो अगर कोई भी डेटा जाए तो सबके पास सब डेटा जाएगा, सब पैकेट सबके पास जाएगा। मतलब ऑल द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आर मिक्स्ड इन विद द अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब रेड का ब्लू में जाएगा, ब्लू का रेड में जाएगा, ग्रीन का सब में जाएगा। सो सब कुछ ये हो जाएगा, मतलब सब पैकेट सर्कुलेट होगा सबके पास अननेसेसरी। तो जब विलन क्रिएट होगा तो क्या होगा देखो। आप देखो विलन क्रिएट होगा, जस्ट सी। जो रेड का है वो रेड के पास जाएगा, जो ग्रीन का है वो ग्रीन का पास जाएगा, और जो ब्लू का है ब्लू के पास जाएगा। देखो विलन्स आर लॉजिकली क्रिएट सेवरल वर्चुअल नेटवर्क्स टू सेपरेट द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। कैसे हो रहा है देखो, देख लो। ये देखो रेड चला गया, रेड के साथ जुड़ा हुआ, ग्रीन ग्रीन के साथ चला गया, और ब्लू ब्लू के साथ चला गया। देखो देखो ब्लू का ग्रीन का ट्रैफिक ग्रीन के अंदर ही रहेगा, ब्लू का ट्रैफिक ब्लू के अंदर, रेड का ट्रैफिक रेड के अंदर। मतलब अननेसेसरी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। देखो क्लियर हुआ क्या इस पिक्चर में? এটা কি বোঝা গেছে না যায়নি বলো? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা কি বুঝেছো? हाँ सर। मनीष हाँ सर, यस सर। यस सर। क्रिएट हो गया? समझ में आया तो ओके। हाँ सर। तो जब ब्रॉडकास्ट होगा तभी होगा ना सर, ये ऐसे देखो, यूनिकास्ट में तो ये कोई देखो ये प्रॉब्लम पिक्चर नहीं। देखो, ये ग्रीन पीस ग्रीन है, ये ग्रीन तीनों तीनों के पोर्ट पे एक ही स्विच, लेकिन तीन पोर्ट अलग हो गया। देखो ये जुड़ गया है। बोलो मनीष बोलो। ये देखो रेड कलर में चला है। हेलो हाँ बोलो। सर, बोल रहा हूँ सर, जब ब्रॉडकास्ट होगा तभी मेरा प्रॉब्लम करेगा क्रिएट नहीं, स्विच ब्रॉडकास्ट पे। समझ लो, ये ग्रीन पीसी ब्रॉडकास्ट होगा तो ये ग्रीन ग्रीन के अंदर ये ब्रॉडकास्ट रहेगा। देख सर ये विदाउट देखो, विलेन। हाँ विदाउट विलन सब सबके पास चला जाएगा, सर इसीलिए तो ये लेकिन कर रहा हूँ। सर यूनिकास्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर? नहीं यूनिकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर। ठीक है देखो यहाँ पर एक डिटेल है, ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी एक ग्रीन है, यहाँ पर भी है, एक स्विच में अंदर नहीं है। यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, येलो है, यहाँ पर येलो है। देखो कैसे हो रहा है, ये राउटर है, ये स्विच है, यहाँ पर राउटर है, ग्रीन ग्रीन के पास ही जाएगा। ओके समझ में आया मनीष? समझ में आया क्या? यस सर। सर एक ओके, स्विच के अंदर कितना विलेन बना सकता है? तुम एक पोर्ट को लेकर एक विलन बना सकते हो।
मतलब 24 पोर्ट को लेकर 24 ভিলেন तुम बना सकते हो। তুমি একটা পোর্টে একটা পিসি কে কানেক্ট করতেই পারো। তার মানে তোমার ओके যদি 24 পোর্ট হয় তুমি 24টা ভিলেন তৈরি করতেই পারো। ইউ ক্যান ক্রিয়েট। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? यस सर। আচ্ছা, কারোর কোনো কোয়েরি থাকলে বলো। এই দেখো, ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, তিনটে ডিপার্টমেন্ট আছে, তিনটে ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েতে আছে, তিনটে সুইচে ছড়ানো। তুমি প্রত্যেকটা মিলে একটা করে ভিলেন করতে পারো। তার মানে এইখানে যদি কোনো ডেটা থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর, তাহলে সেটা সার্কুলেটেড হবে এর থ্রু দিয়ে এর কাছে, এর কাছে, আননেসেসারি এদের কাছে যাবে না। দ্যাট ইজ দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি ভিলেন, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেভার অফ দি ভিলেন। The villain contains, लेकिन the first criteria to create the villain is network ID must be default, डिफरेंस होना चाहिए, नेटवर्क आईडी डिफर करना चाहिए, अदरवाइज विलन नहीं बन सकेगा। और नेटवर्क आईडी डिफर करेगा, इसीलिए ही इंटर विलन राउटिंग का बात आया कि नेटवर्क आईडी डिफर हो गया तो मतलब तुम्हारा विलन मतलब राउटर चाहिए इंटर विलन कम्युनिकेशन के लिए। सो दैट इज कॉल्ड द इंटर विलन राउटिंग। ओके, सो दिस इज द विलन इम्प्लीमेंटेशन। देखो विलन वन एक पीस, विलन वन ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दो तरफ दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक राउटर कनेक्टेड है, इंटर विलन राउटिंग, ये तो अलग बात है, ये तो बात का जब इंटर विलन राउटिंग यहाँ आएंगे तब ये राउटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। विलन मेंबरशिप मोड्स है दो टाइप का, एक है पोर्ट ड्राइवन, मतलब एक एक पोर्ट के अंदर पोर्ट बेस्ड, तुम पोर्ट के अंदर एक विलन पोर्ट के अंदर डाल दो, और दूसरा है मैक बेस्ड, मतलब एक स्विच के अंदर मैक बेस्ड विलन तुम कर रहे हो, मैक के ऊपर डिपेंड करते हो। बेसिकली if you ask me the question that sir how many types of villains are there, so automatically one moment, ये देखो पहला जो जो एडवांटेज है, हम बाद में आएंगे टाइप्स। तो पहला है एडवांटेज क्या है विलन का, पहला ये सॉल्व द ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम, जो अभी मैंने बताया, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, রিডিউস দ্য সাইজ অফ দ্য ব্রডকাস্ট ডোমেন। অবভিয়াসলি তোমার একটা ব্রডকাস্ট ডোমেন মানে কি, তোমার आगे की होतो, पहले क्या होता था, एक स्विच मतलब जो पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन जितना पोर्ट होगा, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो गया कि भाई मेरा ब्रॉडकास्ट, मेरा विलन के अंदर जितना पीसी रहेगा उसके लिए ही मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, चाहे वो एक पीसी हो, चाहे वो दो पीसी हो, चाहे वो तीन पीसी हो। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो गया, जितना ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो जाएगा उतना बैंडविड्थ कंजम्पशन कम लगेगा, कंजेशन कंट्रोल होगा। अलाउ अस टू ऐड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई एक विलन दूसरे विलन के साथ बात नहीं कर सकेगा, ये ऐड हो रहा है कि तुम्हारा प्राइवेसी रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा कि अगर चाहो तुम्हारा डिपार्टमेंट किसी भी तरह दूसरा डिपार्टमेंट में जाके उसका कोई डेटा ये निकालने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। তুমি যদি মনে করো আমি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বসে প্রোডাকশনের ডেটাকে আমি নেব, দ্যাট ইজ নট পসিবল বিকজ ইট সেগ্রিগেটস দ্য এন্টায়ার ল্যাব। নেক্সট, মেক ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট ইজিয়ার। তাতে কি হচ্ছে, তোমার যে তিনটে পোর্ট নিয়ে কাজ কি চারটে পোর্ট নিয়ে কাজ, দ্যাট इज इजी তোমার কাছে मैनेज करा इंस्टेड ऑफ 24 पीसी मैनेजमेंट। अगर 24 पोर्ट तुम्हारे पास होगा उतना इतना ज्यादा 24 पोर्ट होगा, जैसे कि समझ लो दो स्विच होगा 24 पोर्ट 24 पोर्ट मतलब 48 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स में 48 पीसी कनेक्टेड है। इट इज वेरी टीडियस टू मैनेज दोस, बट तुम अगर विलन क्रिएट कर लो तुम्हारा लोड कम हो जाएगा। भाई जो जिस पर्टिकुलर विलन में प्रॉब्लम है उसको तुम देखो, बाकी को छोड़ दो, बाकी तो ठीक चल रहा है। लेकिन अगर विलन नहीं होगा तो जितना 24 पोर्ट में नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तुमको हर पीसी में जाके हर पोर्ट में जाके तुमको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो रहा है, কোথা থেকে ভাই প্রবলেমটা আসছে। ইফ ইউ নো যে তোমার এই জায়গাতে প্রবলেমটা আসছে, ভিলেন হলে সুবিধা হচ্ছে তুমি জানো আমার পার্টিকুলার এই ভিলেনে প্রবলেম হচ্ছে, আমার বাকি ভিলেনে প্রবলেম নেই, আমি চেক করতে যাবো না আননেসেসারি, why should I waste my time। এটা এখানে লাস্ট পয়েন্ট কি বলছে, allow us to
to implement the logical grouping of devices by function instead of location. কাজের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে। আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কাজ হতে পারে যে এই সুইচে একটা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের মেশিন আছে, আর একটা সুইচে একটা মেশিন আছে, আর একটা সুইচে মেশিন আছে, আমি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের মেশিনগুলোকে রিলেট করিয়ে দেবো। কোথায় আছে এখানে বড় কথা না। তার ফলে কি হচ্ছে, আমি এখানে বসে सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक VLAN चल रहा है, वहां पर एक सर्वर है, उस सर्वर को बैठ के तुमने जस्ट समझ लो कि तुम कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई ये DNS सपोज, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसका काम उसके अंदर ही जाएगा। तुमको जाके हर एक स्विच में जाके उसको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अलग, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है VLAN। ये 3 या 4 स्विच में तुम्हारा VLAN डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि उस पीसी में हम दिखाया कि 2 पीसी आया, 2 स्विच आया, ग्रीन पीसी, यहाँ पर भी ग्रीन पीसी आया, तो इंटर VLAN राउटिंग के थ्रू से उसके पास डेटा जा रहा है। दैट इज पॉसिबल। अगर तुम चाहो राउटर को हटा दो, राउटर को 2 पीसी कनेक्ट कर दो। राउटर कब चाहिए? राउटर चाहिए जब इंटर VLAN राउटिंग का जरूरत है। अगर इंटर VLAN राउटिंग नहीं होगा तो राउटर को हटा दो, 2 स्विच के बीच का कम्युनिकेट लिंक कर दो और ये VLAN को एक्सटेंड कर दो। सो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर VLAN है उस VLAN के अंदर जो जितना पीसी रहेगा उसके साथ बात करेंगे। इंटर VLAN রাউটিংটা আমার দরকার হলে কি হচ্ছে, আমার যখন একটা VLAN একটা VLAN সঙ্গে কমিউনিকেট করব, তো আমার যদি কমিউনিকেশনের দরকার না পড়ে আমি রাউটার দেব না, উইদাউট রাউটার আমি কাজ করব। যখন আমার রাউটারের দরকার আমি রাউটার দেবো, একটু কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করে দেবো, হয়ে গেল। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ভেরি ফান্ডামেন্টাল পয়েন্টস অফ দি VLAN। এইটুকু কি বুঝেছো না বোঝনি বলো আমাকে। স্যার আবার একটু বলবেন স্যার, মাঝে একটুখানি বেরিয়ে গেছে নেট প্রবলেমের জন্য। কোন জায়গাটা বলো, শোনোনি? কোন মানে কোন অবধি শুনেছো? স্যার অ্যাডভান্টেজটা শুনেছি, তারপর থেকে অ্যাডভান্টেজের মাঝখান থেকে শুনিনি। আচ্ছা, এই লাস্টের পয়েন্টটা আমি বললাম যে অ্যালাউ আস টু ইমপ্লিমেন্ট লজিক্যাল গ্রুপিং। মানে ধরো তোমার কাছে 3টে সুইচ আছে, এবার ধরো একটা সুইচ একতলায়, একটা সুইচ দোতলায়, একটা সুইচ 3 তলায়। এবার তোমার একটা পিসি আছে যেটা ধরো সে VLAN 5 এ কানেক্টেড। তুমি VLAN 5 এখানে আছে, দোতলা তো একটা VLAN 5 ক্রিয়েট করলে, 3 তলাতেও একটা VLAN 5 ক্রিয়েট করলে, করে 3টেকে জুড়ে দিলে। যেই VLAN 5 ক্রিয়েট হয়ে গেল, অটোমেটিক্যালি তুমি এখানে বসে একতলায় বসে VLAN 5 এ যা ইনস্ট্রাকশন দেবে দ্যাট উইল বি ফরওয়ার্ডেড টু আদার পার্টস। কোথায় তোমার মেশিন দোতলায় না 3 তলায় তোমার এটা চিন্তা করতে হবে না। তুমি জানো আমি VLAN এর মধ্যে ডেটাটা ছেড়ে দিয়েছি, তার মানে ওই VLAN এ যারা যারা আছে তারা ডেটাটা পেয়ে যাবে, সেটাই এখানে বলেছে। ওকে স্যার। অথচ অন্য VLAN তোমার মেশিন অ্যাক্সেসও করতে পারবে না। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি পয়েন্ট VLAN এর। তো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। সো মানিশ ক্লিয়ার हुआ कि नहीं? यस सर। ওকে, বাকিরা বিভু টিভু সব ক্লিয়ার হয়েছে? हाँ सर, मेरा तो क्लियर है। ওকে, हाँ सर। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে যেটা, এই যে জিনিসটা এইভাবে দেখে নাও। সাপোজ তোমার এখানে 3টে সুইচ আছে, তোমার এখানে রাউটার, তোমার ইন্টার VLAN রাউটিং এর দরকার নেই, তো অসুবিধা নেই, আমি এখানে রাউটার দেবো না। দেখো এখানেতে ডিভাইস গুলো রয়েছে, এখানেতে প্রত্যেকটা এক একটা VLAN এর সঙ্গে কানেক্টেড করে দিল প্রত্যেকটা। এবার তারা তাদের মেশিন, ধরো এখানে একটা VLAN 2 তে আছে, এখানেও VLAN 2 তে আছে, VLAN 2 এখান থেকে ডেটা দিল, জাস্ট এখান থেকে গিয়ে এর মুখে চলে যাবে। VLAN 4 ধরো ডেটা দিল, এখান থেকে গিয়ে এখানে চলে গেল, এখানে চলে গেল, হোয়াট এভার। এই এটারই এক্সাম্পলটা এখানে দিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে ইন্টার VLAN রাউটিং। ধরো এটা VLAN অ্যাডমিন, এটা VLAN প্রো, আর এটা VLAN ডেভ। তারা যদি যখন ইন্টার VLAN কমিউনিকেশনটা হবে, then you must have a router, because routing is necessary. Why? Because each and every VLAN has its own network, different network ID. This is the primary condition to design a VLAN. Remember, same ID দিলে কিন্তু VLAN ক্রিয়েট হবে না। এইটা হচ্ছে VLAN মেম্বারশিপ, যেটা আমি বলছিলাম। কি হচ্ছে VLAN হচ্ছে কত ধরনের? বেসিক্যালি 2 ধরনের VLAN আমরা দেখতে পাই। ওয়ান ইজ স্ট্যাটিক, অ্যানাদার ইজ ডাইনামিক। স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে যেটা জেনারেলি আমরা করে থাকি, স্ট্যাটিক মিন্স ম্যানুয়ালি, তুমি ম্যানুয়ালি কমান্ড দিয়ে তুমি পোর্ট অ্যাসাইন করে দিচ্ছ যে আমার অমুক পিসি এই পোর্টগুলো VLAN এর মধ্যে থাকলো, এই পিসিটা আমার এখানে কানেক্টেড, তার মানে এটা এই পিসি গুলো নিয়ে আমার VLAN হচ্ছে। एवरीथिंग इज योर अंडर कंट्रोल। मतलब स्टैटिक मीन्स मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, तुम जाके जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल में,
या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हम जाके वहां पर क्रिएट करेंगे। ये एक भाई ये स्टैटिक विलन, ये पोर्ट हम विलन क्रिएट करेंगे, तो इस विलन में के अंदर ये पोर्ट विलन 2, ये पोर्ट विलन 2, ये पोर्ट विलन 2 में रहेगा, ये पोर्ट विलन 3 में रहेगा। ये सब हम लोगों के हाथ में है, बिकॉज वी आर एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग दैट इज मैनुअल। सो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक विलन। एंड व्हाट इज डायनामिक विलन? Dynamic villain is we are fully dependent on the software. There is a special software designed by the Cisco that is called the VMPS, Villain Membership Policy Server. It depends on that policy server. ये policy server MAC address के ऊपर डिपेंड करके ये IP डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो अभी उस पावर पॉइंट का जो स्क्रीन था उसमें हम बताया कि एक मैक बेस्ड विलन, एक है पोर्ट बेस्ड विलन। पोर्ट बेस्ड विलन होता है स्टैटिक विलन, जो हम लोग क्रिएट करता है पोर्ट के, ये पोर्ट पर्टिकुलर ये विलन के अंदर रहेगा। लेकिन मैक बेस्ड विलन जो होगा वो होगा डायनामिक विलन, जो किसके थ्रू से होगा? VMPS के थ्रू से, विलन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। एक्चुअली ये विलन मेंबरशिप नहीं होगा, ये होगा विलन मैनेजमेंट, ये हम करेक्ट कर देंगे, विलन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। আমার জলের বোতল এনে দাও। तो दैट इज कॉल्ड द विलन पॉलिसी, विलन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। इसका काम क्या है? तुमने बोल दिया कि भाई मेरा ये मैक है, ये डायनामिकली जैसे होता है ना DHCP और नॉर्मल স্ট্যাটিক আইপি में যেটা আমাদের হয় যে আমরা ম্যানুয়ালি গিয়ে আইপি গুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা হচ্ছে আমি DHCP সার্ভারের উপর দায়িত্ব দিলাম যে ভাই এত থেকে এত আইপি তুমি তোমার মতো করে ডিস্ট্রিবিউট করো। এবার DHCP কি করছে? ও ওর মতো করে आईपी डिस्ट्रीब्यूट করে দিচ্ছে। जैसे DHCP में होता है मतलब एक ऑटोमेटिक एलोकेशन और एक स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक में क्या होता है? हम लोगों का इंटरवेंशन होता है, मैनुअली हम लोग स्टैटिक आईपी डाल देते हैं ये हर एक किसी में। और DHCP में क्या होता है? डायनामिक, ऑटोमेटिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं कि भाई मेरा आईपी का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है, तुम जो भी जिसको चाहे जो आईपी तुम डाल दो। दैट फुल्ली डिपेंड्स ऑन द DHCP सर्वर। सो ऐसा ही यहाँ पर होता है, एक पोर्ट बेस्ड होता है, एक मैक बेस्ड। पोर्ट बेस्ड जो होता है ये स्टैटिक विलन होता है, क्योंकि स्टैटिक विलन में जाके हम लोग पोर्ट असाइन कर देते हैं कि ये विलन के अंदर ये पोर्ट रहना चाहिए। हम लोग करेंगे कल लैब में, वो विल डू दैट। और डायनामिक में क्या होता है? वो है मैक बेस्ड विलन। ये मैक एड्रेस के ऊपर डिपेंड करके ये विलन बनाता है। कौन बनाता है? एक सिस्को का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? VMPS, विलन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। ये डायनामिक विलन इसीलिए इसको कहते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल इफ वी मूव ए पीसी फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, न्यू स्विच पोर्ट विल ऑटोमेटिकली बी कॉन्फिगर्ड टू द विलन स्विच द यूजर बिलोंग्स टू। इन स्टैटिक मेथड वी हैव टू डू दिस प्रोसेस मैनुअली। समझ लो एक पीसी है, एक पीसी एक पोर्ट के अंदर है, तुम उस पोर्ट को इस विलन से शिफ्ट करके दूसरा विलन में तुम डाल दिया कि भाई मेरा जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट पोर्ट से F0/23, ये पोर्ट विलन 3 के अंदर नहीं चाहिए, ये विलन 2 के अंदर रहना चाहिए। तो मैनुअली हम लोगों को उसको निकाल के यहाँ पर वो कमांड देके इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैनुअली हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन डायनामिक विलन में क्या होता है? जब तुम इस पोर्ट को इस पोर्ट के अंदर डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर इसको लेके वहां पर शिफ्ट कर देंगे। So that is the dynamic villain, static villain and dynamic villain. Is it clear or not? बोलो। Yes sir. Yes sir. Okay. बाकीरा clear? Yes sir. हाँ सर क्लियर है सर। Okay. এবার হচ্ছে that is very important. Villain connections. One is access link, another is trunk link. এখানে পিকচারটা দেওয়া আছে, দেখে নাও। When the PC is connected to its concerned port of the particular VLAN, that link is called access link. But when one switch is connected to another switch through a particular port and it connects, these two ports are connected by a link, मतलब एक वायर केबल, जैसे कि हम लोगों का वायर होता है, इसको कहते हैं ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक, ये ट्रंक लिंक
क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी वाइटल पॉइंट। समझ लो कोई भी विलन नहीं है, ये तीनों स्विच है, ये तीनों स्विच के अंदर ये तीन 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 9 पीसेस कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर कनेक्शन है वैसे ही है, लेकिन विलन नहीं है। तो ये जो लिंक है, इस लिंक को क्या हम ट्रंक लिंक कहेंगे? शुड आई कॉल इट ए ट्रंक लिंक? शुड आई कॉल इट, रादर शुड वी कॉल इट ए ट्रंक लिंक? नहीं, ये नॉर्मल लिंक होगा। স্যার কি বলেন আরেকবার বলুন স্যার। ধরো এই যে তিনটে পিসি কানেক্টেড দেখছো তো, পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও আমি একটু পিকচারটাকে বাড়িয়ে দিই। পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ? জাস্ট পিকচারটাকে চিন্তা করো, আর কিছু করতে হবে না। আমরা এই লেখাগুলো তো দেখতে পাচ্ছি, একটা লেখা হচ্ছে অ্যাক্সেস লিংক, একটা বলছে ট্রাঙ্ক লিংক। ধরে নাও আমার এখানে কোনো ভিলান নেই, দেখো এখানে ভিলান ক্রিয়েট করা আছে, এটা হচ্ছে অ্যাডমিন 1 ভিলান, এটা প্রো ডেভ, এখানেও অ্যাডমিন 2, এখানে এই মানে অ্যাডমিন ভিলান আছে, প্রো ভিলান আছে, ডেভ, এটা ছড়ানো ডিস্ট্রিবিউটেড ভিলান। মানে ভিলান এই অ্যাডমিন ভিলানটা এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও আছে, প্রো ভিলানটা এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, ডেভ ভিলানটা এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, মানে ডিস্ট্রিবিউটেড। তো ধরে নাও ভিলান বলে কোনো জিনিস নেই, আমার তিনটে সুইচ আছে, এখানে আমার 9টা পিসি কানেক্টেড, যেমন এখানে আছে সবকিছু আছে। দেন এই যে লিঙ্কটা দেখছো ট্রাঙ্ক লিঙ্ক বলছে, এই মোমেন্টে কে আমি ট্রাঙ্ক লিঙ্ক বলবো? না। আমরা ট্রাঙ্ক লিঙ্ক বলবো না। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ ওয়াই? তাহলে ভিলান আমি যখন ক্রিয়েট করব তখন একে আমি ট্রাঙ্ক লিঙ্ক কেন বলবো? বা যখন আমি ভিলান ক্রিয়েট করব, why should I declare this port as trunk port and this port is trunk port also? Why? That is a very very important question. Why should I create a trunk link, or why should I declare the particular switch of a particular port of a particular switch as trunk port? First you have to declare the trunk port and this trunk port, then when you connect this, automatically it will create a trunk link. So that is important, is that to declare the port trunk port. Why should I declare this port as trunk port? Without declaring the trunk port, you cannot communicate, inter-VLAN communication will not be possible. What is the flavor behind it? A trunk port টা যে আমি ডিক্লেয়ার করব, কেন করব? এটা কিন্তু খুব ভাইটাল কোশ্চেন। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এবং আমি এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছি ইন্টারভিউতে, বা তোমার ধরো কোনো ভাইভাতে, যারা পড়েছে তারা বলতে পারে, কিন্তু যখন আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি, যখন জিজ্ঞেস করেছি যেটাকে কেন ট্রাঙ্ক পোর্ট আমি বলবো, আমার দরকার কি আছে? আমার যদি এটা না থাকে, ভিলান না থাকে, আমি কি এটাকে ট্রাঙ্ক পোর্ট বলবো? না স্যার আমরা তো বলবো না। তাহলে যখন আমি এটাকে বলছি ভিলানের সময়, আমি একে ট্রাঙ্ক পোর্ট বলছি, কেন বলছি? কেন আমার ট্রাঙ্ক পোর্টকে ডিক্লেয়ার করতে হবে? কেন আমার ট্রাঙ্ক লিঙ্ক করতে হবে? উইদাউট ডিক্লেয়ারিং এ পোর্ট ট্রাঙ্ক পোর্ট উই ক্যানট প্রসিড। তার কারণ হচ্ছে, দ্য রিজন ইজ, ভালো করে খেয়াল করে দেখো, আমার এখানেও অ্যাডমিন পিসি আছে, এখানেও অ্যাডমিন পিসি আছে, এখানেও অ্যাডমিন পিসি, তার মানে এটা এইটা নিয়ে একটা ভিলান, আমার তিনটে সুইচে আমার ভিলানটা ছড়ানো আছে। এটা তো ঠিক কথা, এটা তো বুঝতে পারছো? তিনটে তো ভিলান আছে, অ্যাডমিন 1, অ্যাডমিন, প্রো আর ডেভ। তাহলে অ্যাডমিন এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও আছে, তার মানে আমার ভিলানটা এইরকম ভাবে ছড়ানো আছে। সিমিলারলি এই ভিলানটাও আমার এইরকম ভাবে ছড়ানো আছে, আবার এই ভিলানটাও এইভাবে ছড়ানো আছে, डिस्ट्रीब्यूटेड। मनीष समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? देखो, जब एडमिन विलन का डेटा दूसरा, ये एडमिन 1 का पीसी एडमिन 2 में कोई डेटा भेज रहा है, एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है प्रो 1 का डेटा प्रो 2 में जा रहा है, डेव 1 का डेटा डेव 3 में जा रहा है, हो सकता है। ये तीनों डेटा एक साथ ये पोर्ट में चला गया, इस पोर्ट से ही तो ये निकलेगा, तो इस पोर्ट के अंदर चला गया।
तो ये पोर्ट को कैसे समझ में आएगा कि ये तीनों विलन का तीनों डेटा अलग है? ये ट्रंक पोर्ट ही ये कर सकता है। ट्रंक पोर्ट ये कर सकता है कि भाई तीनों डेटा मिक्स अप नहीं होना चाहिए। विलन एडमिन 1 का डेटा विलन एडमिन 1 में चला जाओ, विलन प्रो का डेटा प्रो में चला जाओ, और विलन डेव का डेटा डेव में चला जाओ। ये सेग्रीगेट करके एक ही पोर्ट से 3 डेटा निकल रहा है, लेकिन वो सेग्रीगेट करके कोई किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, इसीलिए कि ये पोर्ट को तुमने डिक्लेयर कर दिया ये ट्रंक पोर्ट। इसीलिए नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स, तो ट्रंक पोर्ट में ऐसा क्या है कि ये तीनों डेटा अलग से जा रहा है? ये तीन यहाँ पर एनकैप्सुलेशन होता है गैसेस से। ক্লাস করো, আশ্চর্য, ক্লাস করো তো আমার চেঁচাতে হচ্ছে। तो ये जो तीन ये जो क्या बोल रहा था, ये एक्सेस पोर्ट एक्सेस ट्रंक पोर्ट में होता है। तो ट्रंक पोर्ट में क्या होता है? इसका काम है कि जितना विलन है उतना विलन का डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस विलन का डेटा उस विलन के साथ जुड़ गया, मिल गया, मिक्स हो गया। तो ये ट्रंक पोर्ट जो है, ये ट्रंक पोर्ट का काम है कि भाई नहीं, ये जिस विलन का डेटा दूसरा विलन के साथ मिक्स होना नहीं चाहिए। ये तीनों विलन मेरे थ्रू से डेटा भेज रहा है, तो ठीक है भाई, तीनों विलन का डेटा मेरे पास आ रहा है, लेकिन तीनों सेग्रीगेटेड डेटा मेरे पास आए। कैसे करता है? ये ट्रंक पोर्ट उस डेटा को इनकैप्सुलेट कर देता है कि विलन 1 का, विलन 2 का, ये जो विलन एडमिन का डेटा ये इनकैप्सुलेटेड मतलब रैपिंग होगा, प्रोटेक्टेड होगा। किसके साथ? किसके पास के? विलन प्रो के साथ। और ये भी प्रोटेक्टेड होगा किसके पास से? विलन डेव के साथ। मतलब तीनों डेटा तीनों प्रोटेक्टेड रहेगा। ये काम ट्रंक पोर्ट में होता है। तुम ट्रंक पोर्ट डिक्लेयर करोगे तो तभी जाके ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज द फ्लेवर ऑफ दिस ट्रंक पोर्ट। उसी के हिसाब से ये ट्रंक पोर्ट के थ्रू से ये तीनों विलन का डेटा जाएगा दूसरा स्विच में। सिमिलर वे वहां पर भी ट्रंक पोर्ट है, वहां पर भी एनकैप्सुलेशन को ब्रेक करके वो भेज देंगे, ये एडमिन का डेटा एडमिन के पास जाओ, ये प्रो का डेटा प्रो के पास जाओ, ये डेव का डेटा डेव के पास जाओ। दैट इज द फ्लेवर ऑफ द ट्रंक पोर्ट। सो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर दो टाइप का लिंक होता है। एक है द फर्स्ट वन इज एक्सेस लिंक, जो कि एक पीसी डायरेक्टली एक विलन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर विलन के पोर्ट में कनेक्टेड है। इस पोर्ट को कहेगा एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट इसको कह रहे हैं, और यह है एक्सेस लिंक। सिमिलरली यहाँ पर एक्सेस, ये ट्रंक लिंक है, ट्रंक पोर्ट है, ये ट्रंक लिंक के साथ कम्युनिकेट कर। ये देखो, एक्सेस लिंक कनेक्शन इज द कनेक्शन where switch port is connected with a device that has a standardized Ethernet NIC, मतलब ये NIC के साथ ये कनेक्टेड है, इसको कहते हैं एक्सेस लिंक। और जो पर्टिकुलर पोर्ट में जाके ये कनेक्टेड होता है, ये होता है एक्सेस पोर्ट। और ट्रंक लिंक क्या होता है? देखो, ट्रंक लिंक कनेक्शन इज द कनेक्शन where switch port is connected with a device that is capable to understand the multiple VLANs। इसके समझ में आएगा जब तुम किसी स्विच পোর্ট ডিক্লেয়ার করোগে, তুমি যখনই এটাকে ডিক্লেয়ার করবে এটা সুইচ আই মিন ট্রাঙ্ক পোর্ট, তখনই ওই পোর্টটা হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ও এনক্যাপসুলেট করে দেবে। ও ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে যে এটা কোন পার্টিকুলার ভিলান। আমার কাছে তিনটে ভিলানের ডেটা আসছে, তিনটে কিন্তু ডিফারেন্ট ভিলান আমার কাছ দিয়েই বের হচ্ছে, কিন্তু তিনজনকে কমন সেগ্রিগেট করে দেবো, কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে মিক্স হবে না, অথচ আমার মধ্যে দিয়েই তারা পাস করবে, জাস্ট ফর দ্য প্রোটেকশন, প্রাইভেসি আর সিকিউরিটি পারপাস। কি বলছে? ইউজুয়ালি ট্রাঙ্ক লিংক কানেকশন ইজ ইউজড টু কানেক্ট টু সুইচেস অর সুইচ টু রাউটার। রিমেম্বার আর্লিয়ার ইন দিস আর্টিকেল আই সেড, ওটা তো আগের এটাতে লেখা রয়েছে যে ভিলান ক্যান স্প্যান এনিওয়্যার ইন নেটওয়ার্ক, दैट इज हैपन ड्यू टू ट्रंक लिंक कनेक्शन। जो मैंने ये जो पहले यहाँ पर बताया, ये जो এখানে যেটা আমি বললাম, এই যে ইরেসপেক্টিভ স্প্যান করে যাচ্ছে, ইট ক্যান স্প্যান
यहाँ पर भी एडमिन है, यहाँ पर ये एडमिन 3 विलन अलग है और ये तीनों विलन तुम एक साथ कर रहे हो, ये स्पैन हो गया। एडमिन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। Trunking allows us to send or receive the VLAN information across the network. To support trunking, original Ethernet frame is modified to carry the VLAN information. मतलब protected हो जा रहा है, Ethernet frame को trunk port protect कर देते हैं। कैसे प्रोटेक्शन आ रहा है, कैसे इनकैप्सुलेशन होता है, वो हम आएंगे। ये देखो, ये है, इसको कहते हैं विलन टैगिंग। एक टैग दे देते हैं कि भाई ये विलन 2 के लिए, भाई ये विलन 3 के लिए, तो उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट के पास तीनों टैग चलाएगा। तीनों टैग को देखकर उसको पता चलेगा कि ये तीनों डेटा, तीनों विलन का डेटा अलग अलग टैगिंग का है, चलो वहां पर भेज दो, ट्रांक लिंक के थ्रू से दूसरा पोर्ट में भेज दो। उस पोर्ट को ऐसे पता चलता है, अच्छा इसका टैग है क्या, ओ ये तो विलन 2 में है, जाओ विलन 2 का डेटा विलन 2 में जाओ, विलन 3 का डेटा है विलन 3 में जाओ, ये विलन 4 का डेटा है, जाओ चलो ना विलन 4। यह है विलन टैगिंग। विलन टैगिंग क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है। एनकैप्सुलेशन मेथड, ट्रंकिंग मेथड क्या होता है, वन होता है आईएसएल। आईएसएल होता है इंटर स्विच लिंक, जो कि तुम्हारा सिस्को प्रोप्रिएटरी है इथरनेट स्टैंडर्ड के लिए। ये एक्सक्लूसिवली सिस्को का है, सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है। मतलब तुम अगर सिस्को डिवाइस, सिस्को स्विच सब कुछ यूज करोगे तो उसके अंदर ये कन्फाइंड रहेगा। और .1q जो हम लोग एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, ये IEEE 8021q प्रोटोकॉल का है इथरनेट, ये सब में चलता है। मतलब तुम्हारे एक समझ लो कि एक तुम्हारा सिस्को स्विच है, एक नॉटल स्विच है, एक जूनिपर स्विच है, 3 स्विच के अंदर तुम विलन क्रिएट कर रहे हो, तो ये इस्तेमाल हो सकता है कि दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये कोई प्रोप्रिएटरशिप में नहीं है। .1q इसको कहते हैं। IEEE इसका 8021q स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको कहता है .1q, मतलब ये .1q। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये 8021 के मतलब क्या होता है बताओ तो। এই যে 802 স্ট্যান্ডার্ডটা আমি বলি না, আমরা দেখবে এটা প্রায় পাই, IEEE 802 এর 1 এর বি, 1 1 2 স্ট্যান্ডার্ড। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন 802? What does it mean? What does it mean? বলতে পারবে কি পারবে না বলো। এই 802 স্ট্যান্ডার্ডটা IEEE এর কি? से ईयर। हाँ, ये जो IEEE 802 1 क्यों नहीं, 802 के मतलब क्या होता है? से ईयर हो सकता है या वर्जन। नहीं ভার্সন না, ব্যাপারটা হচ্ছে IEEE ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কি হবে সেইটা জন্য একটা কমিটি ফর্ম করে, সেই কমিটি রিপোর্ট IEEE কে সাবমিট করে, IEEE ওটাকে স্যাংশন করে যে হ্যাঁ এই রিপোর্টটা ভ্যালিড। এটা কবে থেকে চালু হলো এই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করাটা? 1980 ফেব্রুয়ারি থেকে। তো 1980 নেওয়া হলো, আর ফেব্রুয়ারি 2 মানে ফেব্रुवरी যেহেতु सेकंड मांथ, ওই জন্যই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে 802। IEEE ने एक कमिटी बनाया था, स्पेशल कमिटी, क्योंकि तुम उसका कहना था कि भाई तुम लोग रिकमेंड करो कौन सा नेटवर्क में कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1Q ये टैगिंग के लिए, विलन टैगिंग के लिए इस्तेमाल होगा, कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा किसके हिसाब से होगा। तो वो जो पर्टिकुलर कमिटी था, वो कमिटी उसका रिपोर्ट सबमिट किया था IEEE के पास। तो IEEE के साथ उसका कमिटी क्या है, क्यों ये स्टैंडर्ड बोल रहा है, उसके टेक्निकलिटी क्या है, सब कुछ बताया। तो IEEE सेटिस्फाइड हुआ था कि हाँ ठीक है ये रिपोर्ट सही है। तब जाके बोला कि भाई ये रिपोर्ट मंथ ऑफ फेब्रुवरी
1980 से ये लागू होगा, ये चालू हो जाएगा सबके पास, ये स्टैंडर्ड सबको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए 1980 के लिए 80 और फेब्रुआरी सेकेंड मंथ है तो इसीलिए 802 ऐसे इसीलिए आया। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, স্যার আপনি আগেও বলেছিলেন ভুলে গেছি। আমি বলে দিয়েছিলাম বোধহয়, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে আমার দুটো স্ট্যান্ডার্ড, এই দুটো দিয়ে আমরা করতে পারি, বেসিক্যালি আমরা করি এটা দিয়ে। আমরা কাল যখন ল্যাবটা করব দেখবে এটা দিয়ে করছি, কারণ এটা ইউনিভার্সাল, এটা যে কেউ ইউজ করতে পারে, কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আইএসএলটা হচ্ছে সিসকোর ক্ষেত্রেই লিমিটেড। তুমি যদি সিসকো সুইচ গুলো ইউজ করো ঠিক আছে, কিন্তু এমন যদি হয় যে তোমার একটা সিসকো সুইচ আছে আর একটা নটেল সুইচ আছে, দেন ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক। It only work on IS Cisco switch, but .1Q will work in everywhere. तो जो स्विच चाहे तुम इस्तेमाल करो, ओके? अच्छा, next I will come to the point of VTP. ये स्टैटिक विलन जो हमने बताया कि कैसे कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे देखो ऊपर तीनों विलन का 3 नेटवर्क अलग है, 192.20.21.0, इसका है 24.0, इसका है 30.20. कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है हम बाद में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे। ये जो অ্যাক্সেস है मतलब অ্যাক্সেস পোর্ট ডিক্লেয়ার कर रहे हो, ওটা আমি আসবো কালকে যখন আমি একদম টাইপ করে করতে করতে যাব তখন আমি বলতে বলতে যাব, ওগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट तुम देखोगे कि विलन आईडी होता है, विलन आईडी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट विलन आईडी होता है विलन आईडी 1। ये डिफॉल्ट, इसको कहते हैं डिफॉल्ट विलन। मतलब तुम्हारा जितना पोर्ट स्विच के अंदर रहेगा वो सब पोर्ट इस विलन के अंदर, विलन 1 के अंदर होगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी विलन विलन बनाता है तो शुरू करता है विलन आईडी 2 से, कभी 1 से नहीं। यू कैनॉट डिलीट ऑल्सो दिस विलन, विलन 1। আমরা যখনই ভিলান তৈরি করব তার একটা আইডি চাই, যেমন একটা ইউজারের আইডি হয় তেমনি ভিলানের আইডি হয়, ভিলান আইডি দিয়ে আমরা তৈরি করব। তো ভিলান আইডি অলওয়েজ স্টার্টস ফ্রম 2। why not 1? because villain 1 is a default villain and villain 1 কি করা হয়, the villain 1 কে তুমি কখনো ডিলিট করতে পারবে না, you cannot delete the villain 1। ডিফল্ট ভিলান কে তুমি ডিলিট কখনো করতে পারবে না। why? because it contains all the information, जितना भी पोर्ट तुम्हारे पास है, समझ लो तुम्हारे पास 24 पोर्ट्स है, तो तुम देखोगे कि विलन 1 के अंदर जब विलन कोई क्रिएट नहीं हुआ तो विलन 1 के अंदर तुम्हारे यहाँ पर जो क्रिएट जो है सबके पास सब 24 पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन है, 24 का ही इंफॉर्मेशन इसके पास है, ओके? जब तुम विलन क्रिएट करोगे समझ लो कि तुम विलन 2 क्रिएट किया यहाँ से F0/2 और F05 को लेकर, जब तुम ये बनाओगे कि विलन 02 तब जाके यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 चला आएगा और ये 2 यहाँ से हट जाएगा। दैट इज द फ्लेवर। इसीलिए ये जो बोल रहा हूं ना, उस दिन हमने बताया था एक चीज तुम याद करो कि कोई भी ভিলান কে अगर हम लोग ভিলান नहीं बनाएंगे, আমরা যদি ভিলানটা না করি, আমরা ভিলান না করে কি করলাম, আমরা বললাম যে ভাই আমাদের কাছে সুইচ আছে, আমরা আইপি আলাদা আলাদা দিয়ে দেবো, মানে নেটওয়ার্কটাকে আলাদা দেবো। ইটস ওকে, নেটওয়ার্ক তুমি আলাদা দাও। আমি সেদিন কি বলেছিলাম যে আমরা যদি নেটওয়ার্ক আলাদাও দিই তাহলে কিন্তু মনে রেখো যদি কোনো একটা নোড পোর্ট থেকে যদি কোনো একটা ডেটা বেরোয় যেটা ফ্লাড করছে, যেটা ইউজ করবে 255 কে, দেন ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য আইপি
it will be flooded to each and every port. That is why VLAN is necessary. क्यों? इसीलिए कि तुमने आईपी अलग कर दिया, लेकिन एक स्विच के अंदर जब जाओगे तो देखोगे ये डिफॉल्ट VLAN के अंदर ये सब पोर्ट एक साथ है। तो अगर किसी भी तरह ये चार्ट 255 यूज करके कोई भी ब्रॉडकास्ट भेजेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ एक VLAN के अंदर रह रहा ये है, इसीलिए ये सब पोर्ट में वो डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यू कैनॉट स्टॉप द ब्रॉडकास्ट। लेकिन VLAN होने से क्या होगा? देखो यहां से समझ लो 1 2 5 7 VLAN 2 में चला आया, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये 4 पोर्ट यहां से हटकर यहां पर चला आएगा, मतलब जो यहां पर ब्रॉडकास्ट होगा यहां पर नहीं आएगा, इसीलिए VLAN जरूरी है। एम आई क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहता हूँ? আমি যেটা বলছি বোঝা যাচ্ছে কি? একটু বলো আগে। না বুঝতে পারলে বলো, কোনো অসুবিধা নেই। से ब्रॉडकास्ट वाला फिर से बोलिए सर। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है बताओ तुम? अगर सर आपने बोला ना कोई भी सबके पास 255 डेटा चला जाता है, तो समझ लो मेरा कोई VLAN क्रिएट नहीं हुआ। जब भी कोई VLAN नहीं क्रिएट होगा, तभी भी ये स्विच के अंदर जाके तुम अगर देखोगे शो VLAN आईडी, तो ऑटोमेटिकली इट विल शो डिफॉल्ट VLAN को छोड़कर बाकी कुछ नहीं है। और VLAN 1 में जितना भी पोर्ट तुम्हारा असाइन है सब उस पोर्ट के अंदर रहता है, उस VLAN 1 के अंदर रहता है। मतलब तुम्हारा आईपी अलग हो गया, लेकिन कोई भी मशीन अगर ये 4255 को थ्रू से कोई भी डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये एक VLAN के अंदर रहने के लिए ये सब पोर्ट में फॉरवर्डेड हो जाएगा। यू कैनॉट स्टॉप। आईपी अलग होगा, मतलब नेटवर्क आईडी भी अलग, लेकिन फिर भी ये ब्रॉडकास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिफॉल्ट VLAN के अंदर तो सब पोर्ट एक साथ रह रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू कैनॉट स्टॉप ये ब्रॉडकास्ट, दैट विल बी फ्लडेड। लेकिन अगर तुम VLAN क्रिएट करोगे, समझ लो ये ऊपर का जो 4 पोर्ट है 1 2 5 और 7, ये 4 पोर्ट को लेकर VLAN 2 बनाया, तो क्या होगा? वो अब VLAN 2 के अंदर चलाएगा और यहाँ पर VLAN ये हट जाएगा, यहाँ से निकलकर यहाँ पर चला आएगा। सो ऑटोमेटिकली जब भी VLAN अलग हो जाएगा, तो इसका ब्रॉडकास्ट ये 3 4 5 6 के अंदर रहेगा, इस VLAN के अंदर नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली जब भी VLAN अलग हो जाएगा ना, पोर्ट अलग हो जाएगा, तो इसका VLAN इसके अंदर रहेगा, उस पोर्ट के अंदर VLAN का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। दैट इज द रीजन। समझ में आया अब? यस सर। नहीं, क्लियर कर लो, ये क्लियर कर लो, क्योंकि मैंने जो ये बताया ये IBM का एक इंटरव्यू में पूछा गया था। क्या हम अगर, मेरे एक स्टूडेंट को पूछा था कि हम अगर VLAN क्यों क्रिएट करेंगे, इतना सारा कमांड्स याद रखने का क्या जरूरत है? हम लोग एक काम करेंगे, एक स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स होगा, तो 8 पोर्ट्स को क्लास ए, 8 पोर्ट्स को क्लास बी, और बाकी जो 8 पोर्ट्स है उसमें क्लास सी डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली VLAN का कोई जरूरत नहीं, एक पीसी दूसरे के साथ बात नहीं करेगा। लेकिन किसी भी हिसाब से अगर कोई भी पीसी अगर ये 255 के थ्रू से कोई ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, तब तो तुम्हारा जो क्लास चाहे रहने दो, इट विल बी फ्लडेड। क्यों फ्लडेड होगा? क्योंकि डिफॉल्ट VLAN के अंदर सब पोर्ट एक साथ रहता है। हम लोग अलग अलग आईपी दे रहे हैं, लेकिन VLAN के अंदर सब रहता है। अगर किसी भी तरह 255 के थ्रू से ये एक ब्रॉडकास्ट निकलेगा, तो इसके डिफॉल्ट VLAN के अंदर जितना भी पोर्ट होगा सबके पास सर्कुलेट होगा। अगर वहां से ये 8 पोर्ट को तुम निकाल के फेंक दो VLAN 2 के हिसाब से, तब जगह ऑटोमेटिकली ये ब्रॉडकास्ट उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अलग हो गया। समझ में आया? सर डिफॉल्ट VLAN के अंदर 24 पोर्ट रहेगा सर। 20 अगर 24 सर मतलब जितना भी है। जितना पोर्ट होगा उसका आ जाएगा। हम लोग 24 पोर्ट लेंगे तो 24, 48 पोर्ट लेंगे तो 48 पोर्ट। सर फ्लड करेंगे तो सब में हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, अगर फ्लड कर रहे हैं तो सब में हो जा रहा है, तो सब में हो जाएगा। हाँ सर तो VLAN कैसे मतलब ये कर रहा है सर प्रोटेक्ट? तुम तो ये जो पोर्ट असाइन कर रहे हो ना, ये तो पोर्ट तो तुम असाइन कर रहे हो। ये जो पोर्ट जब हम कमेंट देके उसको लेके पोर्ट को निकाल के उस VLAN के अंदर डालेंगे, कल देखेंगे हम कि भाई F0/2 VLAN 2 में चले आओ, F05 VLAN 3 में चले आओ,
F07 विलन 3 में 4 में चले आओ, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे कल, देखोगे कैसे बनाते हैं। मतलब तुमको वहां से कमेंट देके उस पोर्ट को विलन 1 से निकल कर किसी भी विलन में डाल देना चाहिए कि भाई मेरे पास 4 विलन होगा, तो 4 विलन के अंदर ये विलन 2 में F0/2 होना चाहिए, F05 होना चाहिए, F07 होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग कल करेंगे, वो करेंगे प्रैक्टिकल। सो पोर्ट 1 यूज होगा? हाँ पोर्ट पोर्ट 1 1, हाँ पोर्ट 1 क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? 1 मोमेंट, ठीक। तो हाँ, तो हाँ पोर्ट 1 क्यों नहीं यूज होगा? विलन 1 को तुम कुछ नहीं कर सकोगे, विलन 1 को डिफॉल्ट विलन को क्रिएट नहीं कर सकोगे, डिलीट भी नहीं कर सकोगे। पोर्ट 1 क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? पोर्ट 1 होगा तो हम लोग कल देखेंगे, तो 3 पोर्ट लेके पोर्ट 1 को कैसे किया जाता है, विल डू दैट। ये तो सब पोर्ट है, इस्तेमाल करके निकलेगी। तो पोर्ट 1 में एक पीसी कनेक्टेड है, सर्वर समझ लो, एक सर्वर तुम कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर एक्चुअली मतलब विलन 1 में सारा पोर्ट रहता है, हम लोग एग्जैक्टली, मतलब डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाँ जितना वहां से बचा। लेके हम लोग डाल देते हैं, ओके। भाई तुम चले आओ विलन 2 में, तुम चले आओ विलन 3 में, ऐसे करते हैं। डिफॉल्ट उसके अंदर जितना भी तुम्हारा पोर्ट होगा, डिफॉल्ट उसके अंदर ही रहेगा। ओके सर, यस सर। हम दिखा रहा है तुमको, तुम्हारा मन में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। रुको, कोई भी एक समझ में, यहाँ पर एक स्विच ले लिया, ये बूटिंग हो रहा है। सर स्विच में CLI कैसे ओपन करेंगे? तो CLI होगा तो ऐसा ही होगा। सर मतलब किससे कनेक्ट करेंगे सर? हाँ सर मतलब ये CLI ओपन कहाँ पे करेंगे? पीसी पे? हाँ, सेम एज राउटर। कंसोल? हाँ कंसोल नहीं, वो तो तुम डबल क्लिक करो। अच्छा हम दिखा रहे हैं, देखिए ये देखो, शो विलन ब्रीफ, देख लो, जितना पोर्ट है सब विलन 1 में डिफॉल्ट है और एक्टिव है। और ये जो विलन आईडी है ना, ये स्पेसिफिक है, जैसे कि FDDI टोकन रिंग के लिए ये डिफॉल्ट उसका आईडी है 102, टोकन रिंग का डिफॉल्ट है 103, FDDI नेट का है डिफॉल्ट 104। ये आईडी तुम नहीं चेंज कर सकोगे, ये इसका फिक्स विलन आईडी है। ओके, ये देखो विलन को तुम्हारे पास जितना पोर्ट है सब इसके पास असाइन हो गया है। देखो तुम अगर विलन 2 क्रिएट करोगे तो यहां से निकलकर वो पोर्ट वहां पर चला जाएगा। समझ में आया? सर GIG ये क्या है सर? GIG1 गीगाबिट ईथरनेट, एफए होता है फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट होता है। क्या हुआ? शो विलन आईडी, ओ सॉरी शो विलन आईडी 1, ये देखो मैंने 1 के अंदर कितना विलन आईडी 1, विलन आईडी 1 के अंदर कौन सा पोर्ट है ये दिखा देंगे। अगर तुम्हारा विलन आईडी 2 हुआ 3 हुआ तो उसमें जाके शो विलन आईडी करोगे, ये सब कुछ चला जाएगा। क्लियर? हम लोग कल देखेंगे सर लैब में। समझ में आया क्या? এই বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা তোমরা বাকিরা? না পারলে বলো। सर बोलो। सर फिजिकल स्विच पे कैसे मतलब CLI ओपन करेंगे?
सेम प्रोसेस जैसे राउटर में होता है, सेम प्रोसेस। स्विच पे जाओ, उसका कंसोल, हाँ उसका कंसोल कनेक्ट करो, उसके जाके CLI मोड में चले जाओ, सेम। स्विच से राउटर का सब कमांड सेम है। सो सॉफ्टवेयर में मतलब कोई यूज होता है? हाँ, वहाँ पर iOS यूज होता है, ओके। iOS वर्जन, इसके अंदर भी iOS होता है, सेम। मतलब राउटर और स्विच सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर भी फ्लैश होता है, रोम होता है, डायनामिक रैम होता है, सब कुछ, सब जो जो हमने बताया रैम के अंदर वो सब कुछ रहता है स्विच के अंदर। इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। एक मिनट, शो फ्लैश, ये देख लो 2960 का सी, मतलब सिस्को 2960 स्विच है, उसका बाइनरी फाइल दिया है, मतलब ये iOS चल रहा है। ये स्विच के अंदर देखो, iOS का नाम है ये। आया समझ में? यस सर। सेम इसके अंदर भी स्टार्ट रन सब है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सब है, सब डिफरेंस कुछ नहीं है। ओके, सी बस सिस्को का स्विच में ही होता है। कौन सा ये? हाँ, सिस्को का नहीं, नॉटल में हो सकता है। नॉटल में लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स होता है, जैसे कि जूनिपर का फिक्स कमेंट्स होता है उसके पास। ओके सर। ओके, अच्छा, हम्म, विलन टैंक तो हमने अब अभी तक अभी बताया। ये ट्रंकिंग कैसे होता है 8021Q के थ्रू से, ये एक पिक्चर है, दिखा रहा है। ये देखो, एक्चुअली ये ISL एनकैप्सुलेशन है। एनकैप्सुलेशन ऐसे ही होता है, तो ये ISL का है, मतलब सिस्को का जो इंटर स्विच लिंक होता है। ये रेड के थ्रू से ही आएगा। किसी के साथ देखो, किसी को मिक्सअप नहीं हो रहा है। ये रेड का रेड आया, यहाँ पे रेड के पास चला गया। ये ब्लू का ब्लू आया, ब्लू के पास चला गया। यहाँ पर इसका डीप शेड का है, डीप शेड का ये इसके जाके इसके पास चला गया। मिक्सअप नहीं हो रहा है, दैट इज वाई द एनकैप्सुलेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड द टैगिंग। जो एनकैप्सुलेशन चाहिए वो ट्रांक पोर्ट जब तुम डिक्लेयर करोगे तब एनकैप्सुलेशन चालू होगा। तुम तब जाके तुमको एनकैप्सुलेशन कौन सा होगा वो ये बता देना चाहिए। अगर तुम एनकैप्सुलेशन नहीं बताया, ट्रांक पोर्ट होगा तो तब एनकैप्सुलेशन का जरूरत है, और एनकैप्सुलेशन होगा तो तब जाके इंटर विलन कम्युनिकेशन होगा। मतलब ये जो विलन स्टैंड हो गया, रेड रेड, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड, तो इसके थ्रू से जाएगा। पहले इस पोर्ट को तुमको ट्रांक पोर्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ट्रांक पोर्ट डिक्लेयर करने से ही नहीं होगा, उसके बाद तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांक पोर्ट है, तो इसका इनकैप्सुलेशन स्टैंडर्ड क्या होगा, तब जाके इसके थ्रू से इनकैप्सुलेटेड वे में डेटा सर्कुलेट होगा, अदरवाइज नॉट। ये है एक्चुअली डेटा, इनकैप्सुलेटेड डेटा। ये ISL हेडर इसके पास ऐड हो जाएगा। ये तुम्हारा मेन इथरनेट डेटा है, इसके साथ ISL हेडर होगा और फ्रेम चेक सीक्वेंस के ऐड हो जाएगा। जे स्विच पहले बोल दिया कि ये पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर चला चला जाओ, जाके उसके बाद तुम इसको कहो कि भाई ये स्विच मोड मोड ट्रंक, मतलब ये पोर्ट को तुम डिक्लेयर कर दिया ये ट्रंक मोड है। उसके बाद जाके डिक्लेयर करो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन ISL या .1 की, तुम जो चाहे। मैक्सिमम केस में हम .1 की इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले फिक्स करो कि कौन सा पोर्ट तुम्हारा ट्रंक पोर्ट होगा, तो तुमने फिक्स कर दिया भाई ये पोर्ट, आप जाके इसके अंदर चले चले गए, इसको ट्रंक डिक्लेयर करो, ट्रंक डिक्लेयर करने के बाद उसका एनकैप्सुलेशन को डिक्लेयर करो, दैट इज द प्रोसेस। पहले इसको डिसाइड किया, उसके बाद एनकैप्सुलेशन कर दिया, ये नहीं होगा। पहले पोर्ट को फिक्स करो कि भाई ये पोर्ट मेरा ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, इसको डिक्लेयर करो ये पोर्ट मेरा ट्रंक पोर्ट होगा। जब डिक्लेयर कर दिया, ऑटोमेटिकली इट फिक्सेस दैट दिस पोर्ट इज ट्रंक पोर्ट। देन उसके बाद जाके इनकैप्सुलेशन बोल दो कि भाई ये पोर्ट में कौन सा टाइप का इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल होगा, .1Q और ISL।
हम लोग कल आएंगे सब इसके यहाँ पर आएंगे। यहाँ से बहुत सारे कमेंट्स है, कैसे होगा ये 1Q मोड प्रोसेस, कैसे होगा। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अब है VTP। VTP क्या जरूरत क्यों है? VTP होता है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। लेयर 2 मतलब वैसा लेयर में लेयर 2 में रहता है। इसका ইস্তেমাল करने का এটাকে ইউজ করার একটা কারণ হচ্ছে যে তুমি তোমার যে ভিলান টোটাল কনফিগারেশনটা আছে, এন্টায়ার যে কনফিগারেশনটা আছে, সেই কনফিগারেশনটা তুমি খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে যেতে পারো, হ্যাপাজার্টলি নয়। তাহলে কি করবে? এইটা হচ্ছে সিসকো প্রপ্রিয়েটারি লেয়ার 2 একটা প্রোটোকল। এই ভিটিপি দিয়ে তুমি কি করলে? বললে ভিটিপি ডোমেন তৈরি করলে। যেমন আমরা একটা ডোমেন তৈরি করছিলাম, যেমন আমরা একটা এএস ভ্যালু তৈরি করছিলাম, যেমন আমরা সার্ভার একটা ডোমেন তৈরি করি। তুমি এখানে একটা ডোমেন ডিক্লেয়ার করলে, দিস ইজ মাই ডোমেন, ভিটিপি ডোমেন। ওর মধ্যে একটা সুইচকে তুমি ডিক্লেয়ার করবে ভিটিপি সুইচ সার্ভার, বাকিকে করবে ভিটিপি ক্লায়েন্ট বা ভিটিপি ট্রান্সপারেন্ট। তাতে কি হবে? স্মুথলি তোমার অপারেশন গুলো হবে। কেন হবে বলে দিচ্ছি। সাপোজ এই যে ভিটিপি सार्वर, धरो VTP कॉन्सेप्ट नहीं, समझ लो कि तुम्हारे पास ये VTP कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या होगा? समझ लो स्विच 5 में जाके तुम एक नया VLAN बनाया, स्विच 5 में जाके 4 पोर्ट को लेकर एक नया VLAN बनाया, तो इसका इंफॉर्मेशन तुमको जाके हर एक VLAN को, जो बाकी VLANs है, सबके पास देना चाहिए। समझ लो तुम्हारे पास 10 VLAN है, you have already designed, created 10 विलन है, 11th विलन तुमने क्रिएट किया, तो तब तुमको क्या करना पड़ेगा? ये 11th विलन का इंफॉर्मेशन बाकी जो 10 विलन है उसके पास देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटर विलन कम्युनिकेशन करना है, इंटर विलन राउटिंग का कम्युनिकेशन करना है, तो हर एक के पास ये नया विलन का इंफॉर्मेशन चाहिए। নতুন ভিলানটা তুমি যখন করেছো, তাহলে বাকিদের সেটা জানাতে হবে যে ভাই আমি এই ভিলানটা করেছি। কেন? না, তার কারণ হচ্ছে যে যখন আমার ইন্টার ভিলান রাউটিং এর যদি দরকার পড়ে, কমিউনিকেশনের দরকার পড়ে, বা কোন একটা সুইচ পোর্টকে আমি ওর মধ্যে ফেলে দিলাম, তাহলে আমাকে তো জানিয়ে রাখতে হবে যে ভাই আমি কিন্তু একটা নতুন ভিলান তৈরি করেছি। আমাকে কি করতে হবে? এই বাকি যে 10টা ভিলান, প্রত্যেকটা ভিলানের মধ্যে ঢুকে এই নতুন ভিলানের ইনফরমেশনটাকে ওকে বলে দিতে হবে। আবার রিভার্সলি যদি তুমি কনভার্সলি চিন্তা করো, যে কোনো একটা ভিলানকে আমি ডিলিট করলাম, ধরো এই 11 নম্বর 11th ভিলানকে আমি ডিলিট করে দিয়েছি, আমাকে কিন্তু এই বাকি 10টা ভিলানে ঢুকতে হবে, ঢুকে বলতে হবে যে भाई 11th विलन को हमने डिलीट कर दिया। दैट इज वेरी टीडियस जॉब। लेकिन अगर हम VTP को यूज करोगे, VTP डोमेन को यूज करोगे, तो इट इज वेरी एकदम पानी के माफिक इजी हो जाएगा। क्यों? इस एक स्विच को हम डिक्लेयर करेंगे VTP सर्वर, हमने जो भी क्रिएट करेंगे VTP सर्वर में बैठ के क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली जितना भी क्लाइंट होगा उसके पास ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाएगा। मेरा कोई हेडेक ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी विलन को हमको हटा देना चाहिए, हम सर्वर में बैठ के उसको डिलीट कर दिया विलन को, ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन बाकी जो विलन्स है उसके पास सर्कुलेट हो जाएगा। नया विलन बनाए या कोई भी विलन चालू है जिसको हम डिलीट करें, किसी विलन को हम एडिट करें, मतलब नया नाम से चेंज कर दिया, नया नाम दे दिया, सब कुछ ये सर्वर में बैठ के करने के बाद सर्वर में ये इसको फॉरवर्ड कर देंगे जितना भी क्लाइंट विलन है सबके पास। इसीलिए VTP जो डोमेन क्रिएट होगा उसके अंदर VTP मोड है, 3 टाइप का मोड होता है। एक स्विच को तुम VTP सर्वर बना सकते हो, एक VTP को तुम क्लाइंट बना सकते हो, और एक VTP को तुम ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। ट्रांसपेरेंट के मतलब क्या होता है? वो इस विलन डोमेन के अंदर ही रहेगा, लेकिन VTP सर्वर और क्लाइंट के इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा।
उसके ऊपर नहीं आएगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट एक विलन होगा। वो खुद का विलन खुद उसके अंदर, वो खुद का विलन खुद बना सकते हैं, खुद मिटा सकते हैं। उसके इफेक्ट विलन सर्वर वो या क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा। और विलन सर्वर के अंदर जो भी डेटा तुम, जो विलन तुम बनाओगे या डिलीट करोगे, उसके इफेक्ट ट्रांसपेरेंट, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। वो एक VTP डोमेन के हिस्सा होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे होता है ना, एक डोमेन के अंदर सर्वर क्लाइंट और एक स्टैंडअलोन सर्वर होता है। वो डोमेन का हिस्सा है, लेकिन वो स्टैंडअलोन, मतलब उसका कोई डेटाबेस का शेयर सर्वर नहीं पाया, उस मेन सर्वर के पास नहीं जाएगा, और मेन सर्वर का कोई इंस्ट्रक्शन उसके पास नहीं आएगा। उसी के तरह यहाँ पर भी ये होता है कि एक VTP को तुम सर्वर बना दिया, एक क्लाइंट बना दिया। क्लाइंट होगा तो उसको कोई विलन को डिलीट या क्रिएट करने का, कोई भी चेंज करने का हक ही नहीं है। जो होगा सर्वर में बैठ के होगा। विलन सर्वर में बैठ में जो भी होगा तुम करो, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इट विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल अदर विलन्स, क्लाइंट विलन्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लोग का सर्वर में होता है কি হচ্ছে, একটা সার্ভার কোনো কারণে বসে গেল, তাহলে তো তাহলে সেই নেটওয়ার্কটা চলবে না। তাহলে আমরা কি করি, একটা প্যারালাল সার্ভারকে রেখে দিই সবসময়। सेम थिंग में हैपन इन केस ऑफ VTP सर्वर। तुम एक स्विच को VTP सर्वर बना दिया, उसके साथ और एक स्विच को कनेक्ट करके उसे भी VTP सर्वर बना दो, तो ऑटोमेटिकली दीज टू सर्वर विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर कोई भी सर्वर, ये स्विच जो VTP स्विच सर्वर बढ़ गया, तो दूसरा PTP स्विच सर्वर से ऑटोमेटिकली ये VTP डोमेन चालू रहेगा, काम करेगा। जो नॉर्मल सर्वर के वहां पर होता है, यहाँ पर भी वही होता है। डिफरेंस है, वहां पर एक पीसी को हम सर्वर बनाते हैं, यहाँ पर एक स्विच को हम बना दिया कि ये VTP सर्वर है, ये स्विच VTP क्लाइंट होगा, ये स्विच VTP ट्रांसपेरेंट होगा, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? बोलो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये देखो, सर्वर मोड है, क्लाइंट मोड है। देखो, VTP server can add, modify and delete VLANs, and it will propagate a VTP message containing all the changes from all of its link, its trunk ports. जितना भी होगा सबके पास चला जाएगा। And if server receives a VTP message, it will incorporate the change and forward this message from all the remaining trunk ports. Client क्या है? Client है VTP client switch cannot change the VLAN configuration itself, जो हमने बताया। It can only update its VLAN configuration through the VTP messages that it receives from the VTP server. VTP server जो बोल देगा कि भाई ये चेंज करो तो वो करेगा, ये चेंज मत करो तो नहीं करेगा। When it receives a VTP message, it incorporates with change and then forwards it to the remaining trunk ports. एक यहाँ पर VTP client है, यहाँ पर VTP सर्वर है, यहाँ पर भी VTP क्लाइंट है। VTP सर्वर में एक मैसेज भेज दिया, उसके पास आया, वो उसका चेंज कर दिया। दूसरा ट्रांक पोस्ट से तीसरा विलन VTP क्लाइंट को बोल दिया कि भाई ये मैसेज चेंज कर लो, VTP सर्वर ने ये फॉरवर्ड किया। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट मोड इसीलिए कि समझ लो यहाँ पर VTP सर्वर है, यहाँ पर VTP ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद क्लाइंट है। VTP सर्वर में कोई भी चेंज होगा, कोई मैसेज VTP मैसेज भेजेंगे, तो ट्रांसपेरेंट तो इंडिपेंडेंट है, वो क्या करेंगे, उसके थ्रू से मैसेज सीधा चला जाएगा VTP क्लाइंट के पास, सोजा चले जाए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। इसके थ्रू से ये मैसेज चला जाएगा, কারণ VTP ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুইচ, ও VTP সার্ভারের কন্ট্রোলে নয়, কিন্তু ওই ডোমেনে রয়েছে, কানেক্টেড। তখন কি বললো, বললো ঠিক আছে সার্ভার তুমি যে মেসেজটা আমায় দিচ্ছ দাও, আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি ক্লায়েন্টকে। দ্যাট ইজ দ্য VTP ট্রান্সপারেন্ট। देखो, VTP transparent can also make change in VLANs, but it will not propagate these changes to other switches. उसके अंदर VTP transparent mode switch के अंदर जो भी चेंज होगा वो कर सकता है, बिकॉज वो तो इंडिपेंडेंट पार्ट है, लेकिन उसका चेंज VTP सर्वर या BTP क्लाइंट के पास नहीं जाएगा, और VTP सर्वर क्लाइंट का चेंज उसके पास नहीं जाएगा। दैट इज क्लियर। If transparent switch receives a VTP message, it will not incorporate the change and forward the message as it receives from all remaining trunk ports. मैं VTP ट्रांसपेरेंट हूं और मेरे पास सर्वर है, यहाँ पर क्लाइंट है।
सर्वर ने मेरे पास मैसेज भेजा, मैंने देख लिया कि ओ ये तो मेरे लिए नहीं है, चलो भाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू से दूसरा तरफ जो क्लाइंट है उसको भेज दो। दैट इज द प्रोसेस। इज इट क्लियर? यस सर। বাকিরা বুঝতে পেরেছো? বাকিরা হ্যাঁ কি স্যার, হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পেরেছো? অসুবিধা নেই তো? আমি এইগুলো কেন পড়াচ্ছি, কালকে একটা ল্যাব করাবো, ওই ল্যাবটাতে কি করে ভিলান ক্রিয়েট করে, কি করে সুইচ পোর্টটাকে মানে ট্রাঙ্ক পোর্ট ডিক্লেয়ার করে, অ্যাক্সেস পোর্ট করে, ভিটিপি ডোমেন ভিটিপি সার্ভার ক্লায়েন্ট কি করে করে, আর ইন্টার ভিলান রাউটিং কি করে করে, একটা কমন প্র্যাকটিক্যালে এই সব কটা তোমরা করতে পারবে, সব কটা। একটা সুন্দর আমার কাছে পুরো স্টেপ বাই স্টেপ একটা পুরো করা আছে, ওটা আমি একদম ওইভাবে দেবো তোমাদের। ওইটা করলে টোটাল জিনিসটা কমপ্লিট, ভিলানের টোটাল মানে তোমার ভিলান ক্রিয়েশন, ভিলান মানে তোমার অ্যাক্সেস পোর্ট ডিক্লেয়ার, অ্যাক্সেস ট্রাঙ্ক পোর্ট ডিক্লেয়ার, এনক্যাপসুলেশন, ভিটিপি ডোমেন, ভিটিপি সার্ভার, ভিটিপি ক্লায়েন্ট, इंटर ভিলান রাউটিং, টোটাল কমপ্লিট হয়ে যাবে একটা কমন प्रैक्टिकल। इसीलिए हमने ये बोल रहा हूँ। ये नोट हम आप अपडेट तुम्हारा स्टूडेंट फोरम में हम दे देंगे, तो एक बार पढ़ लेना, जस्ट देख लेना নোট। কালকে আমি কিন্তু আইজিআরপি নোট দিয়ে দিয়েছি স্টুডেন্ট ফোরামে, দেখেছো কি না দেখোনি? হ্যাঁ স্যার দেখেছি। আমি ওখানে নোট দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু মোটামুটি রেগুলার ওয়েতে। এই নোটগুলো আমি তৈরি করেছি, কালকে বসে এগুলো সব দিয়ে দেবো, আজকেই দিয়ে দেবো, যাতে কালকে তোমরা এটা করতে পারো, মানে ল্যাবটা ভালোভাবে করতে পারো, বুঝতে পারো। আমি যখন করবো তোমরা বুঝতে পারবে, তারপর তোমরা আবার ওই ওই ল্যাবটাই তোমরা বাড়িতে করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, মোটামুটি থেকে এগুলো তো বলেই দিলাম। আচ্ছা, ইন্টারভিলান রাউটিং, এটা তো বলেই দিলাম যে ইন্টারভিলান রাউটিং কি করে হবে। ওখানে ওখানে এই রাউটারে একটা ছোট্ট চেঞ্জ করতে হবে, সেটা আমি রাউটারে বসে কাল দেখাবো, এটা এখানে বসে দেখালে তুমি বুঝতে পারবে না। এটা হচ্ছে ইন্টারভিলান রাউটিং হবে। এখানে একটা এই যে .1.1.0 দেখছো, সাব इंटरफेस लॉजिकली একটা ভাবতে হবে যে you have a single port, लेकिन लॉजिकली इसको तुम 2 या 3 या 4 हिस्सों से बांट रहा है। समझ लो F0/1 है तुम्हारे पास, इसको तुम बांट रहे हो 0.1, 0.2, 0.3, ये लॉजिकली, ये एनकैप्सुलेशन के लिए। VLAN 10 का डेटा यहाँ से जाएगा VLAN 20 में जाएगा, तो हर एक ये पर्टिकुलर लिंक फॉलो करके, तो हम कल देखेंगे। ये देखो, ये इसीलिए ये पोर्ट से एक VLAN का एक ही लिंक है, तो यहाँ पर लॉजिकली 2 के साथ जाके 3 ये 0.1 से जाके 0.1.1 से यहाँ पर आएगा लॉजिकली। এটা আমি আজকে আপলোড করে দেবো, 3টে নোটই আপলোড করে দেবো, অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? এই যে ভিটিপি ক্লায়েন্ট, সার্ভার আর ট্রান্সপারেন্ট মোড, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম। এটা হচ্ছে সার্ভার, এটা ক্লায়েন্ট, এটা ট্রান্সপারেন্ট মোড, এটা ক্লায়েন্ট। এই যখন একটা মেসেজ দিল এখানে এই যে অ্যাড নিউ ভিলান, এ কি করলো সঙ্গে সঙ্গে এইটা এর কাছে পাঠিয়ে দিল, এর কাছেও পাঠালো, এই চেঞ্জটা নিল না। এই যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এর কাছেও আসবে কিন্তু এ চেঞ্জটা নেবে না। এটা কি সেটা আমি পরে আসবো, এটা আমি এখন ইচ্ছে করে বলিনি, অনেক বেশি এ হয়ে যায় মানে ভিটিপি প্রুনিংটা, এটা আমি কালকে ল্যাবের সময় বলে দেবো, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা তো আমরা কালকে করব সব বসে বসে, এটা আমি তাই আজকে দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে?